Forever Skincare is specially designed to help you customize a skincare routine to meet your individual needs. With 2 premium skincare systems and several complementary products to target specific skin concerns, Forever has everything you need to care for your skin. Infinite by Forever and the Sonia Daily Skincare System were specially formulated to address 2 of the major skin types recognized by science: dry and aging skin and combination skin. Using the best ingredients from nature paired with the latest scientific advancements, Infinite by Forever provides a complete system specially formulated for dry and aging skin. This powerful pairing of 4 products hydrates skin, reduces the appearance of fine lines and wrinkles, promotes healthy collagen levels, and targets aging from the inside out. Made specifically for combination skin, which can fluctuate and vary greatly, the Sonia Daily Skincare System features a high concentration of aloe and other moisturizing botanicals. A revolutionary gel-based technology helps to deliver moisture and botanicals where your skin needs them most, with a light texture that leaves skin feeling refreshed and rejuvenated. Once you have determined whether your skin is best supported by the Infinite by Forever system or Sonia Daily Skincare, you are ready to customize your routine. Forever's facial skincare products are designed to target a specific skincare concern or need, with products like Awakening Eye Cream to diminish the appearance of puffiness and dark circles, and significantly reducing the appearance of wrinkles in the delicate eye area. Balancing Toner to refresh, soothe, rehydrate, and minimize the appearance of pores. Smoothing Exfoliator to gently exfoliate and smooth skin's tone and texture. Protecting Day Lotion to shield against harmful UV rays with SPF 20 and moisturize skin. Aloe Activator to moisturize and soothe skin with over 98% aloe vera gel. And more products coming soon. Forever's range of amazing skincare products truly allows you to customize your routine based on your skin type and specific needs for results that will make you look and feel your very best. इसके पहले मैं बता दूं कि स्किन केयर के बारे में आज अगर मैं बताऊं, हम लोग केमिकल प्रोडक्ट्स या केमिकल जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं स्किन में, तो वो बेसिकली केमिकल यूज प्रोडक्ट होता है। और केमिकल बेस्ड होने की वजह से हम लोग अपने एंटी एजिंग हम लोग के स्किन में आने लगता है, प्लस हम लोगों के इलास्टिसिटी, हम लोगों की जो स्किन की इलास्टिसिटी है हम लोगों की खोने लगता है। आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, स्किन केयर और पर्सनल केयर के, सब नेचुरल बेस्ड और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में जितने भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, टिल देन हम लोगों के स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। पिगमेंटेशन हो या स्किन कैंसर हो। इस वजह से देखिएगा आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों, किस लिए? एज जितने भी महंगे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज ना करें, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहने के रहता है। इस वजह से हम लोगों के स्किन के प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। आज मैं जो आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स, वो सब नेचुरल बेस्ड और एलोवेरा से बना हुआ है। अब आपको लगता होगा कि एलोवेरा तो बहुत सारे मार्केट में है जो कि एलोवेरा से बना हुआ है प्रोडक्ट, बट मैं आज बता दूं, फॉर एलोवेरा की अगर बात करूं मैं, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स में जो एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है, उसमें एलो बार्बाडेंसिस मिला हुआ है, जिसमें 100% मेडिसिनल और कॉस्मेटिक्स वैल्यू है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत एक्सट्रीम पॉइंट में, और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पहले पर्सनल केयर, फिर इसके बाद पर्सनल के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में आज दिखाती हूँ।
पर्सनल केयर, फर्स्ट हम लोग का जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ब्राइट टूथ जेल। ये है तो ब्राइट टूथ जेल नाम जितना छोटा है, बट इसकी क्वालिटी और एक्सट्रीम है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो कि मैंने जैसे बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सब मेन इंग्रेडिएंट्स एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, और इसमें स्टेबलाइज्ड एलोवेरा के साथ साथ बी प्रोपोलिस मिला हुआ है और मिंट मिला हुआ है, जिसके वजह से माउथ बहुत देर तक फ्रेशनेस रहता है। और जिनके जैसे माउथ अल्सर है या माउथ में कैंसर है, तो वहां पे ये ब्राइट टूथ जेल बहुत फायदा देता है। बहुत लोगों का जैसे गम ब्लीडिंग की समस्या होती है, वहां पे भी ये गम ब्लीडिंग में बहुत अच्छा फायदा देता है। इसमें मिंट होने के कारण हम लोगों को अलग से कोई भी माउथ फ्रेशनर यूज नहीं करना पड़ता है, बहुत देर तक माउथ फ्रेश रहता है। और इसके जैसे मैंने बताया कि अगर नाम तो छोटा है, बट इसके फायदे बहुत है। नॉट ओनली अ टूथपेस्ट, एज अ टूथपेस्ट के अलावा ये बहुत जगह हम लोगों का यूज होता है, जैसे पिंपल्स या ब्रूनो में भी ये बहुत ज्यादा काम देता है। एज अ फेस वॉश भी हम लोग ये ब्राइट टूथ जेल हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये पाइल्स में भी बहुत अच्छा फायदा देता है। स्पेशली लेडीज लोगों की बात करूं तो लेडीज लोगों में क्रैक्स की मीन्स पैर फटने के बहुत प्रॉब्लम होता है। समर में या विंटर में बहुत लोगों का 12 मंथ्स पैर फट जाता है, तो वहां पे भी अगर रेगुलर रात को लगाते हैं तो ये ब्राइट टूथ जेल लगाने से धीरे धीरे पैर की जो क्रैक्स है वो ठीक होना स्टार्ट कर देता है। ये ब्राइट टूथ जेल स्मोकर्स के लिए बहुत फायदा करता है। जैसे स्मोकर्स की अगर बात करें, स्मोकर्स निकोटिन लेते हैं स्मोक छोड़ने के लिए। ब्राइट टूथ जेल अगर दिन में 2 बार या 3 बार अगर हम लोग यूज करते हैं और लिप्स में थोड़ा सा यूज करके अगर छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ये जो स्मोकिंग की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे जाने लगता है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है एलो लिप। ये भी नाम छोटा, बट इसके फायदे बहुत ज्यादा है। एलो लिप है एक लिप बाम, बट ये लिप बाम एक नेचुरल एलोवेरा, बी वैक्स मिला हुआ है और जोजोबा ऑयल मेन इंग्रेडिएंट्स है। और भी दूसरे एलो लिप मीन्स लिप बाम की बात करें, बहुत सारे लिप बाम नेचुरल भी नेचुरल कलर के आते हैं, बहुत सारे पिंक कलर के आते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहता है और बहुत देर तक हम लोग के लिप्स को मॉइस्चराइज नहीं करता है। बट ये एलो लिप्स में बी वैक्स के होने के कारण हम लोग के लिप्स बहुत देर तक मॉइस्चराइज करता है। और जिनका बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ये रेगुलर यूज करते करते हम लोगों का ये एलो लिप यूज करते करते हम लोगों का लिप्स बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखता है। फिर इसमें आप हम लोग के लिप्स में जैसे स्मोकिंग करते करते और स्मोकिंग और लिपस्टिक लगाते लगाते अगर बहुत लोगों का लिप्स ब्लैक 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 स्पॉट हो जाता है, तो ये एलो लिप लगाने से हम लोगों के जो ब्लैक स्पॉट जो लिप्स में पड़ जाता है, वो ब्लैक स्पॉट धीरे 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 वो पिंक नेचुरल पिंक हो जाता है। और एलो लिप्स नॉट ओनली लिप्स में बट बहुत जगह यूज किया जा सकता है। अगर घर पे मॉइस्चराइजर नहीं है, फेस वॉश यूज करने के बाद एज थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स में लीजिए और पूरे फेस में अप्लाई कर सकते हैं। एज अ मॉइस्चराइजर का काम बहुत अच्छा करेगा। अगर आप ये बहुत भी पॉकेट फ्रेंडली है और कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में हैं, कहीं भी कुछ भी किसी भी कीड़े ने काट लिया, तो इंस्टेंट आप लगाइए, तो जलन एकदम इंस्टेंट कम हो जाएगा। फिर
किसी में कट गया, वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इंस्टेंट 1 to 2 मिनट्स में वहां से ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा। फिर ये पाइल्स में भी एलो लिप्स पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम देता है, वहां पे भी आप एलो लिप्स यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूं, सन लिप्स। ये एकमात्र फॉरएवर का प्रोडक्ट है जो कि लिप बाम है और SPF 30 मिला हुआ है। एलो लिप्स के बाद अगर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है लिप्स के लिए तो ये एलो लिप्स है। ये सन UVA को लिप्स से प्रोटेक्ट करता है, लिप्स को प्रोटेक्ट करता है UVA से, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से जो हम लोगों का लिप्स डैमेज करता है। तो ये एलो लिप्स लगाने से सन लिप्स लगाने से वहां पे भी बहुत अच्छा काम देगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूं फॉरएवर की, हैंड सोप, एलो हैंड सोप। नाम तो है एलो हैंड सोप, बट ये एज अ फेस वॉश, एज अ बॉडी सोप, एज वेल एज अ हेयर वॉश भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कुकुम्बर, एलोवेरा के साथ साथ कुकुम्बर और लेमन ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। इस वजह से स्किन को हम लोगों का डीप क्लींजिंग का काम करता है और मॉइस्चराइज करता है। अलग से अगर ये हैंड सोप अगर हम लोग यूज करते हैं तो अलग से कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्किन में कोई भी तरह की सनबर्न या कोई भी एलर्जी स्किन में है तो ये हैंड सोप वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है और ऑयली स्किन है, हैंड सोप यूज करते करते धीरे धीरे ये वो नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। एज एलो हैंड सोप का पीएच लेवल और स्किन का पीएच लेवल एकदम सेम होता है। और मैंने जैसे बताया कि ये हम लोग एज अ शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी के पास शैम्पू नहीं है तो ये हैंड सोप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आप एज अ हेयर वॉश भी यूज कर सकते हो। उसके बाद कंडीशनर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट आता है फॉरएवर का एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। मार्केट में आपको कहीं पे भी फेस सोप नहीं मिलेगा, बट फॉरएवर में ये एकमात्र एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप है जो कि हम लोग फेस में भी यूज कर सकते हैं। इसमें एलो बार्बाडेंसिस मिलर तो है, साथ ही एवोकाडो जो कि बहुत ही महंगा फ्रूट है उसके बटर से बनाया गया है एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। ये कोई भी स्किन, जैसे कि नॉर्मल स्किन हो, स्किन ड्राई हो, ऑयली हो या कॉम्बिनेशन स्किन, किसी भी स्किन में भी ये बहुत ही अच्छे से जाता है। आप किसी भी स्किन वाले लोग यूज कर सकते हो। ये फेस एंड बॉडी सोप में कोई भी तरह का एलर्जी, फेस में अगर कोई भी तरह का दाग या पिगमेंटेशन अगर है तो यहाँ पे एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप यूज करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जो साथ में ये बहुत देर तक आपको मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को, और अलग से कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, एलो जोजोबा शैम्पू। हेयर फॉल, स्पेशली लेडीज, जेंट्स लोगों के भी बात करूं, हेयर फॉल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिनों में। अब हेयर फॉल होता क्यों है पहले मैं अगर बता दूं। हेयर फॉल बहुत सारे कारणों से होता है। पहला है शैम्पू। आप जिस भी कंपनी के शैम्पू यूज कर रहे हो उसके अगर मेन इंग्रेडिएंट्स में अगर आप जाओगे तो उसमें सल्फर लिखा होगा। सल्फर होने के कारण हम लोगों के हेयर फॉल, हेयर डैमेज, डैंड्रफ और लेडीज लोगों की स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हम लोग एलो जोजोबा शैम्पू है इसमें एलोवेरा के साथ साथ जोजोबा है। इस वजह से ये हम लोगों का नेचुरल क्लींजर का काम करता है और जो हम लोगों का वीक हेयर है वो वीक हेयर फॉल करके
फिर नया रीग्रोथ करता है, हेयर रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। फिर जो हम लोगों का हेयर डैमेज हो गया है वो हेयर रिपेयर करता है। और लेडीज लोगों का जो स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है वहां पे भी बहुत अच्छा काम देता है। प्लस बहुत लेडीज लोग जो स्मूथनिंग करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं और कलर यूज करते हैं, तो कलर प्रोटेक्शन के लिए ये आलो जोजोबा शैम्पू बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सल्फर और पैराबिन फ्री शैम्पू है। और लेडीज लोगों की अगर बात करें तो ये अप्रोक्स 150 टू 160 टाइम्स ये यूज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा लॉन्गेटिविटी है, बहुत दिनों तक हम लोग ये आलो जोजोबा शैम्पू हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आता है आलो जोजोबा कंडीशनर। अब कंडीशनर की अगर बात करूं तो शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना मस्ट है। अब कंडीशनर लगाना क्यों मस्ट है? शैम्पू जो हम लोगों का हेयर डैमेज था वो रिपेयर तो कर देता है, बट कंडीशनर हम लोगों का बालों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कंडीशनर भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत लॉन्ग, बहुत दिनों तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि कंडीशनर शैम्पू के बाद लगाना बहुत ज़रूरी है। और कंडीशनर हम लोगों को स्कैल्प में अप्लाई करना नहीं चाहिए, एज हम लोगों का हेयर डैमेज करता है। स्कल्प से 2 इंचेस एटलीस्ट गैप करने के बाद हम लोगों को हेयर में अप्लाई करना चाहिए कंडीशनर। इसके बाद के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, एलो शेव। अब ये एलो शेव जेंट्स लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन शेविंग क्रीम है। मार्केट में जो भी शेविंग क्रीम यूज करते हैं, एक शेविंग क्रीम यूज करने के बाद जेंट्स लोगों का बियर्ड बहुत ड्राई, बहुत रफ हो जाता है। बट ये आलो शेव बहुत ही मीन्स बियर्ड बनाने के बाद भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग देगा और कहीं भी कट जाने का या छिल जाने का कोई भी स्कोप नहीं रहता। एज इसमें तो एलोवेरा है। और ये लेडीज लोगों की बात करूँ तो बहुत सारी लेडीज है जो कि रेजर यूज करते हैं, तो वहां पे अगर एलो शेव अगर यूज करते हैं तो स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज करेगा। और वहां पे बहुत सारे लेडीज लोगों की कट जाता है या छिल जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर जेंट्स की अगर मैं बात करूं, बियर्ड्स बहुत शेविंग क्रीम यूज करते करते वाइट हो जाता है, तो ये एलो शेव यूज करने से जो आपके बियर्ड वाइट होने के पॉसिबिलिटी बहुत कम कर देता है, बहुत ही कम कर देता है, जल्दी बियर्ड वाइट नहीं होने देता है। उसके बाद आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलो डिओ स्टिक। ये एलो डिओ स्टिक है, एवर शील्ड है, ये डिओ स्टिक है। मेनली ये स्टिक के फॉर्म से है। हम लोग जो मार्केट में जो डिओड्रेंट हम लोग यूज करते हैं, वो डिओड्रेंट यूज करते करते या तो फिर हम लोग कपड़ों के ऊपर से यूज करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। अंडर आर्म्स में यूज करते करते हम लोगों के अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, स्पेशली लेडीज लोगों का ब्लैक होता है, तो गर्मियों में सीवलेस नहीं पहन पाते। डिओड्रेंट यूज करते करते हम लोगों के जो अंडर आर्म्स के जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं। उसी की वजह से हम लोगों का पोर्स जो है बंद होने के कारण वहां पे ब्लैक हो जाता है। ये डिओ स्टिक लगाने से हम लोगों के जो पोर्स है जो बंद हो गए हैं वो खुल जाता है। और बहुत लोगों के एक बैड स्मेल आता है, तो वो बैड स्मेल धीरे 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 ठीक हो जाता है। और इसमें स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल होने के कारण जो बैड स्मेल होने नहीं देता है। फिर हम लोग मार्केट में जो डिओड्रेंट हम लोग जो अप्लाई करते हैं डायरेक्ट क्लोथ्स में, तो देखिएगा क्लोथ्स अंडर आर्म्स की जगह बहुत जल्दी फेड हो जाता है। बट ये एलो एवर शील्ड यूज करने से हम लोगों के क्लोथ्स
के जो कलर्स है वो फेड नहीं होता है। और एलो एवरशील्ड भी वैक्सिंग के बाद, जो लेडीज लोग जो वैक्सिंग करते हैं उसके बाद बहुत लोगों का इचिंग होता है या कट जाता है, तो एलो एवरशील्ड यूज करने से इचिंग की समस्या या कोई भी एलर्जी की समस्या नहीं होती है। एलो डेओ स्टिक हम लोग जो पैर फटने से भी पैर फट जाता है वहां पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग मोजा पहनने के बाद एक बहुत ही बैड स्मेल आता है, बहुत बैड स्मेल आता है, तो वो एलो डेओ स्टिक एवर शील्ड अगर हम लोग रेगुलर अगर हम लोग यूज करते हैं पैर के नीचे, तो जो बैड स्मेल है वो बैड स्मेल धीरे धीरे बंद हो जाता है आना। इसके बाद आता है एलोफास्ट। एलोफास्ट एक एंटीबायोटिक है जो एक फर्स्ट एड का काम आता है। कहीं भी कट जाए, छिल जाए वुंड में, ये एलोफास्ट वहां पे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इंस्टेंट वहां पे रिजल्ट आएगा। पानी में मिला के एलोफास्ट एक बार स्प्रे कीजिए एज एन एंटीबायोटिक। जैसे हम लोग नहाने के पानी में डेटॉल मिला के हम लोग नहाते हैं, एलोफास्ट अगर एक स्प्रे अगर पानी में मिला के अगर नहाते हैं तो वो भी एंटीबायोटिक का काम करता है। प्लस ये एलोफास्ट डैंड्रफ में और हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्कल्प में आप अप्लाई कीजिए और मसाज कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। एलोफास्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एलोफास्ट आप शैम्पू के साथ मिक्स करके डाइल्यूट करके भी आप यूज कर सकते हो, तो शैम्पू और भी ज्यादा आपका चलेगा। फिर उसके बाद आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है सब लेडीज जेंट्स सबके लिए एक है, बट ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो कि 25 एडिशन मेन और वुमेन परफ्यूम है। मेन के लिए अलग है, वुमेन्स के लिए अलग है। वुमेन्स और मेन का जो फ्रेगमेंट है, जो स्मेल है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ये अगर आप क्लोथ्स में अगर आप देते हैं तो बहुत 2-3 दिन तक इसका फ्रेगमेंट आपके कपड़ों में रहेगा। धोने के बाद भी, कपड़े अगर आप धो भी देते हैं उसके बाद भी ये फ्रेगमेंट आपका रहता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग सैनिटाइजर। सैनिटाइजर एक साल पहले बहुत ही कम लोग होंगे कि जो कि सैनिटाइजर यूज करते होंगे, बट ये 1-1.5 साल में सैनिटाइजर का होड़ लगा हुआ है, राइट। अब सैनिटाइजर की अगर बात करें, सैनिटाइजर में 60% अल्कोहल होना जरूरी है, तभी जर्म्स आपके मरेंगे, ऐसा बोला जाता है। बट हम लोग सैनिटाइजर हम लोग के जो अल्कोहल है, अल्कोहल के भी तो एक साइड इफेक्ट होता है। अल्कोहल जब हम लोग खाते हैं, जब हम लोग पीते हैं, तब तो हम लोग के बॉडी वो एक डिहाइड्रेट करता है अल्कोहल। तो अल्कोहल स्किन पे अगर हम लोग लगाते हैं या जब हम लोग कोई भी सैनिटाइजर अगर यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि हैंड बहुत ज्यादा सॉरी रफ हो जा रहा है, बहुत ड्राई हो जाता है। बट हम लोग के फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर में 60% अल्कोहल के साथ साथ एलोवेरा, हनी और लेवेंडर का मिक्स है। तो जो अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट्स है वो एलोवेरा हनी के होने के कारण वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और लेवेंडर होने के कारण इसमें इसका स्मेल बहुत ही अच्छा और बहुत देर तक रहता है, और इसमें 99.9% जर्म्स आपका किल करता है। उसके बाद आता है एमपीडी। फॉरएवर के एमपीडी मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। ये मल्टीपर्पज डिटर्जेंट तो है, बट ये एग्रीकल्चर, फार्मिंग, आपके जो फिशरी में भी बहुत अच्छा काम देता है। प्लस ये आपका लॉन्ड्री में भी आप यूज कर सकते हो।
कपड़े धोने के बाद जो बचा हुआ पानी या घर साफ करने के बाद जो बचा हुआ पानी, अगर आप वही पानी अपने घर के गमले में अगर देते हो, तो वहाँ के जो प्लांट्स या आपके फूल के फ्लावर्स के अगर प्लांट है तो फ्लावर्स के बहुत ज्यादा फ्लावर्स आपके पौधे में होगा। ये एज अ कार वॉश भी काम आता है। ये एमपीडी एनिमल वॉश, आपके घर पे अगर पेट्स है, डॉग्स है या कोई भी पेट्स आपके घर में है, तो एमपीडी अगर पानी में थोड़ा सा मिला के आप उनको नहलाते हैं, तो कोई भी तरह का स्किन के प्रॉब्लम, उनके जो स्किन में जो प्रॉब्लम होते हैं वो नहीं होगा। फिर जो इंसेक्ट पड़ जाता है वो इंसेक्ट भी नहीं पड़ता है, ये एमपीडी से अगर आपके पेट्स अगर नहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये पर्सनल केयर का सेगमेंट तो खत्म हो गया है। फिर मैं बात करूंगी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में। पर्सनल केयर के अगर कोई भी फॉरएवर की लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, पहले ही मैं बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं देता है, कोई मेडिसिन नहीं है। जो भी प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर बोलिए या वेट मैनेजमेंट बोलिए या कोई भी प्रोडक्ट, स्किन केयर, पर्सनल केयर बोलिए, सब नेचुरल बेस्ड है और हम लोग प्रिस्क्राइब्ड नहीं करते लाइक अ डॉक्टर। और स्किन केयर और पर्सनल केयर के या जो भी हम लोग के सेक्टर्स है, वेट मैनेजमेंट या न्यूट्रिशन की बात करें, तो सब नेचुरल बेस्ड और सप्लीमेंट्स है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। अब मैं स्किन केयर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चलिए मैं जान लेती हूँ स्किन की। स्किन की अगर मैं बात करूं, स्किन के 3 लेयर होते हैं। पहला जो एपिडर्मिस, जो हम लोग देख सकते हैं, धूल मिट्टी धूप सब हम लोगों के अपर लेयर डैमेज करता है, मींस एपिडर्मिस वो थोड़ा सा पतला होता है। सेकेंड लेयर आता है डर्मिस, जो कि थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है। और लास्ट लेयर आता है हाइपरडर्मिस। एक स्किन मींस हाइपरडर्मिस डर्मिस में कन्वर्ट होता है और डर्मिस लेयर एपिडर्मिस में कन्वर्ट होता है। और ये प्रोसेस एटलीस्ट 23 to 28 डेज लगता है कन्वर्ट होने में। इस वजह से जो मार्केट की अगर कोई भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो देखिएगा कुछ दिन बाद यूज करने के बाद फिर से वही जिस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रॉब्लम फिर से हम लोग नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ एपिडर्मिस में ही जाके काम करता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो भी स्किन केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, उसमें एलोबार्बाडेंसिस मिलर होने के कारण आप देख रहे होंगे कि वो एलोवेरा थर्ड लेयर मींस हाइपरडर्मिस में जाके काम करता है। मेन प्रॉब्लम जो स्किन का ग्रो होता है वो हाइपोडर्मिस में होता है। तो जब हाइपोडर्मिस का जो भी प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो डर्मिस में कन्वर्ट होगा एक हेल्दी स्किन, और हेल्दी स्किन जो डर्मिस है वो एपिडर्मिस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से जो भी प्रोडक्ट फॉरएवर का यूज करते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 महीना लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में। और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उसके बाद अगर हम लोग वो प्रोडक्ट छोड़ भी देते हैं लगाना, तो फिर से वो प्रॉब्लम हम लोगों को नजर नहीं आता है। वो एकदम थर्ड लेयर से हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। चलिए अब स्किन केयर की अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स के बारे में, पहला प्रोडक्ट आता है स्किन केयर का मार्क्स पाउडर। ये मार्क्स पाउडर मेनली एंटी एजिंग का काम करता है। जो लोग 30 और 40 इयर्स अबव है, वो लोग ये मार्क्स पाउडर एक्टिवेटर के साथ अगर यूज करते हैं, तो ये स्किन टाइटनिंग, बहुत लोगों के फाइन लाइंस आ जाते हैं, फाइन लाइंस गायब करता है।
फिर रिंकल्स कम करने में हेल्प करता है। और रेगुलर अगर मार्क्स पाउडर एक्टिवेटर के साथ यूज करते हैं वीकली 2 से 3 दिन, तो ये हम लोगों का स्किन का जो टाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा रखता है। मार्क्स पाउडर ये एक हम लोगों को जो लेडीज लोगों की बात करें, तो जो हम लोगों के बहुत सारे लेडीज है कि फेशियल हेयर के लिए वैक्सिंग कराते हैं और थ्रेडिंग कराते हैं। बट ये मार्क्स पाउडर अगर एक्टिवेटर के साथ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, मार्क्स पाउडर एक्टिवेटर अगर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद बटर पेपर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद मार्क्स पाउडर फिर से अप्लाई करते हैं, और फिर से हम लोग अगर बटर पेपर यूज करते हैं और फिर मार्क्स पाउडर अगर यूज करते हैं एक्टिवेटर के साथ, मतलब 3 लेयर ऑफ मार्क्स पाउडर विथ एक्टिवेटर और 2 लेयर ऑफ बटर पेपर, तो ये आपके जो फेशियल हेयर है वो रिमूव करने में हेल्प करता है। और जो ब्लैक हेड्स है मेनली नोज में और चिन में होते हैं, तो वो ब्लैक हेड्स भी रिमूव करने में बहुत अच्छा काम देता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट आता है स्किन केयर का एक्टिवेटर, जो मैं बात कर रही थी। ये एक तरह से डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है, इसमें प्योर एलोवेरा मिला हुआ है। ये मार्क्स पाउडर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद आता है मेरिन मार्क्स। मेरिन मार्क्स में भी ये एक्टिवेटर डाइल्यूट करके अगर हम लोग लगाते हैं, तो मेरिन मार्क्स का जो पावर है, मैं मेरिन मार्क्स इसके बाद में बताऊंगी, जो पावर है, जो क्लींजिंग का जो काम करता है मेरिन मार्क्स, वो ज्यादा डीप क्लींजिंग का काम करता है। और बहुत अच्छा ये मेरिन मार्क्स के साथ और मार्क्स पाउडर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये प्ले करता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट R3 फैक्टर। R3 फैक्टर है, ये मेनली 30 इयर्स और 40 इयर्स अबव लेडीज लोग R3 फैक्टर यूज करते हैं। R3 फैक्टर है मेनली रिटेन करता है हम लोगों के जो मॉइस्चराइजर है। 30 इयर्स या 35 इयर्स लेडीज लोगों के मॉइस्चर धीरे धीरे हम लोगों का खोने लगता है, तो वो मॉइस्चराइज हम लोग के स्किन को मॉइस्चर रिटेन करता है नेचुरली। फिर आता है रीस्टोर, जो हम लोगों का जो इलास्टिसिटी है, 35 अबव लेडीज लोगों की इलास्टिसिटी बहुत कम होने लगता है। जैसे छोटे बच्चों लोगों की अगर बात करें, उन लोगों के अगर आप देखिएगा, अगर गाल खींचेंगे तो बहुत जल्दी आपके हाथों में चला आएगा, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोगों का एज बढ़ता है, तो हम लोग इलास्टिसिटी हम लोग खोने लगते हैं। तो R3 फैक्टर लगाने से हम लोगों के जो इलास्टिसिटी है वो हम लोगों का बरकरार रहता है। रिन्यू, जो हम लोग 35 to 40 इयर्स के बाद धीरे धीरे फेस डल होने लगता है, या एंटी एजिंग के तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं, तो ये रिन्यू जो है हम लोगों का अपीयरेंस हम लोग का यंग करता है। डेली अगर R3 फैक्टर यूज करते हैं कोई भी लेडीज 35 to 40 इयर्स के अबव, तो फिर से उन लोग यंग दिखने लगते हैं। बहुत सारे लेडीज लोगों के 35 to 40 इयर्स अबव लेडीज लोगों के जो स्किन के जो स्ट्रक्चर्स है, टोन है, मीन्स चीक्स में बोलिए या फोरहेड बोलिए, एक अनइवन स्किन टोन हो जाता है। तो ये R3 फैक्टर लगाने से वहां पे भी बहुत अच्छा अनइवन टोन जो स्किन टोन होता है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके बाद बात करते हैं R3 फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर। अल्फा ई फैक्टर मींस ये एक विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का मिक्सचर है। ये मेनली 40 इयर्स अबव लगा सकते हैं, बट उसके नीचे भी लेडीज लोग यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट फॉरएवर का स्किन केयर या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं, उसमें अगर 1 ड्रॉप ऑफ अल्फा ई फैक्टर अगर आप मिक्स करके अगर लगाते हैं, तो उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
अल्फा ई फैक्टर में जो प्रोपोलिस क्रीम है, प्रोपोलिस क्रीम के साथ अगर मिक्स करते हैं तो बहुत देर तक हम लोग के स्किन मॉइस्चराइज करता है, और बहुत लोगों के स्किन में जो बिग पोर्स हो जाते हैं वहां पे भी ये बहुत अच्छा फायदा देता है। ये अल्फा ई फैक्टर इनफैक्ट हम लोग हेयर ऑयल में जैसे अलग से विटामिन सी का कैप्सूल हम लोग लगाते हैं हेयर में, तो हम लोग एज अ हेयर केयर में भी ये अल्फा ई फैक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट इपीब्लेम। इपीब्लेम मेनली पिगमेंटेशन, जिन लोगों का पिगमेंटेशन है और अनइवन स्किन टोन है, वहां पे फॉरएवर इपीब्लेम वहां पे बहुत अच्छा काम देता है। एक एज के बाद बहुत सारे लोगों के पिगमेंटेशन मेनली यहाँ पे आईज के नीचे चिक्स में ब्लैक 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 एक स्पॉट हो जाता है। अगर एवोकाडो सोप के साथ अगर हम लोग फेस अगर धोते हैं, उसके बाद अगर इपीब्लेम हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा काम देगा, और हम लोग का जो स्किन टोन, इवन स्किन टोन में भी ये इपीब्लेम बहुत अच्छा काम देता है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है मेरिन मास्क। मेरिन मास्क की जैसे मैं बात करूं, ये मेरिन मास्क से हम लोगों के स्किन को डीप क्लींजिंग का काम करता है। ये मेरिन मास्क बेसिकली डल, जिन लोगों का फेस डल, नॉर्मल और ऑयली स्किन जो है, वो ये सब स्किन टोन में स्किन में जाता है, इजीली जाता है, और ये डीप क्लींजिंग का काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हैं कि बेसन का पैक लगाते हैं घर पे और मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं, बट ये मेरिन मास्क में एक एल्गी बोल के मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो कि ओशन में पाए गए जो प्लांट्स है उसमें सेल नहीं रहता है, उसके काई से ये मेरिन मास्क बना हुआ है। और इसमें एलोवेरा के साथ साथ हनी और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, जिसकी वजह से हम लोगों के स्किन को एक डीप क्लिनजिंग का काम करता है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है। जिनका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, वो अगर मेरिन मास्क रेगुलर यूज करते हैं तो ऑयली स्किन से उनका स्किन नॉर्मल में ट्रांसफर होने लगता है। मेरिन मास्क एक टैन रिमूवल का भी बहुत अच्छा काम देता है। अगर मेरिन मास्क के साथ थोड़ा सा टोमेटो जूस अगर मिक्स करते हैं तो ये आपका टैन रिमूविंग, बहुत ज्यादा जिनका टैन है तो टैन रिमूविंग का काम करता है। इसके साथ आप अलग से थोड़ा सा हनी, रॉ हनी आप मिक्स करके 2 से 3 वीक आप यूज कर सकते हो, तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग देता है। साथ में आप इसके साथ कुकुम्बर भी मिला के थोड़ा सा कुकुम्बर के एक्सट्रैक्ट तो है इसमें, बट अलग से भी अगर कुकुम्बर के थोड़ा सा रस अगर मिलाते हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छा डीप क्लींजिंग और टैन रिमूवल का बहुत अच्छा आपका काम देगा। इसके बाद आता है प्रोडक्ट फॉरएवर का एलो स्क्रब। फॉरएवर का एलो स्क्रब एकमात्र स्क्रब है जो कि आप डेली यूज कर सकते हो। डेली मार्केट में जो भी स्क्रब है उसमें लिखा रहता है कि दिन में 2 से 3 बार यूज करना चाहिए, बट ये फॉरएवर का एलो स्क्रब हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। इसमें एलोवेरा के साथ साथ जोजोबा ऑयल है। ये स्क्रबर में के जो मॉलिक्यूल्स है इतने छोटे हैं, इतने माइन्यूट हैं कि मींस अगर आप जब रब करोगे आपके स्किन में तो धीरे 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 और भी इसके स्क्रब जो मॉलिक्यूल्स है और भी बहुत छोटे होते जाएंगे, और इसमें से जोजोबा ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, जोजोबा ऑयल इसमें से निकलेगा, जिसके वजह से आपका डीप क्लींजिंग का भी काम करता है और ब्लैक हेड्स रिमूव करता है।
स्क्रबर आप डेली यूज कर सकते हो, ये आपका स्किन हेल्दी रखेगा और मॉइस्चराइज करता है। अलग से अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है तो आप सिर्फ स्क्रबर यूज कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा स्किन में मॉइस्चराइजिंग देगा। ये स्क्रबर ऑलमोस्ट 100 टू 110 टाइम्स चलता है। अगर स्क्रबर के साथ अगर हम लोग एक्टिवेटर अगर मिक्स करते हैं तो ये अप्रोक्स 150 टू 160 टाइम्स और ज्यादा चलेगा। तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत अच्छा स्किन आपका रखता है ये स्क्रबर। इसके बाद बात करते हैं एलोवेरा जेली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जितने भी पर्सनल केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है उसमें तो जेल, एलोवेरा जेल तो है, बट एलोवेरा जेली में 85% इसमें एलोवेरा स्टेबलाइज्ड एलोवेरा मिला हुआ है, जिसके वजह से ये इनफैक्ट डैंड्रफ, हेयर फॉल, स्किन के जैसे भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके कट्स हो, वुंड हो, सोराइसिस हो, ये एक मिनी हॉस्पिटल के भी नाम से जाना जाता है और एलोवेरा जेली सब जगह यूज होता है। स्किन में जैसे भी टाइप के प्रॉब्लम या इन्फेक्शंस हो, या एलोवेरा जेली आप यूज कर सकते हैं। जिनके बहुत ज्यादा डैंड्रफ या बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप स्कल्प में आप मसाज कर सकते हो, मसाज करके छोड़ दीजिए। 1-2 हफ्तों के बाद आप देखिएगा डैंड्रफ या हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट ये बेबी नैपी, जो बच्चे लोग नैपी पहनते हैं, छोटे बच्चे लोग, तो रैशेस हो जाता है। तो जो वहां पे रैशेस का भी मीन्स बहुत अच्छा मीन्स रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी रैशेस बच्चे लोगों का ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एलोवेरा, एलो प्रोपोलिस क्रीम। प्रोपोलिस की अगर मैं बात करूं, मधुमक्खी के छत्ते में 3 चीज पाए जाते हैं, एक मधु, एक वैक्स और एक प्रोपोलिस। प्रोपोलिस क्या करता है, मधुमक्खी के छत्ते को प्रोटेक्ट करता है। उसी वजह से लाइक दैट एलो प्रोपोलिस क्रीम हम लोगों के स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एलो प्रोपोलिस क्रीम में भी जो कौन लोग यूज कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, जिनके फेस में बिग पोर्स है, बहुत सारे लोगों के चिक्स में बड़े बड़े पोर्स रहते हैं, उन लोग अगर एलो प्रोपोलिस क्रीम लगाते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा काम देगा। एक्ने में ब्री प्रोपोलिस के साथ अगर जेली अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो एक्ने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये एज अ सनस्क्रीन भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास अगर सनस्क्रीन नहीं है तो घर से निकलने के एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले अगर आप यूज करते हो तो एज अ सनस्क्रीन आपका काम करेगा। ये एज अ डे क्रीम बोलिए और एज अ नाइट क्रीम बोलिए, आप यूज कर सकते हो। और ये किसी भी स्किन में जाता है, स्पेशली ड्राई स्किन में ये बहुत अच्छा काम देता है। बहुत लोगों का बहुत ही ड्राई स्किन हो जाता है तो वहां पे प्रोपोलिस लगाने से धीरे धीरे उनका नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत लोगों का एल्बो बहुत रफ होता है तो वहां पे प्रोपोलिस क्रीम लगाने से एल्बो जो रफनेस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और प्रोपोलिस में एलोवेरा विटामिन ए के साथ साथ विटामिन ई होने के कारण जो भी प्रॉब्लम स्किन के होता है तो वहां पे आप प्रोपोलिस क्रीम आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है एलो लोशन। एलो लोशन बेसिकली 25 इयर्स के जो कम लेडीज लोग हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। 25 इयर्स के कम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन लोग का स्किन ऐसे भी इलास्टिसिटी बहुत अच्छा रहता है, तो मोर और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल या इलास्टिक या करने के लिए ये एलो लोशन आप
यूज कर सकते हैं। और इसमें जोजोबा ऑयल के साथ साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के होने के कारण स्किन को बहुत स्मूथ करता है और मॉइस्चराइज करता है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन किसी भी एज के लेडीज लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी एज के लेडीज। ये आपके मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने से आपके इलास्टिसिटी मेंटेन रहता है, साथ में आपके स्किन के जो सॉफ्टनेस बोलिए या स्मूथ बोलिए, या आपके स्किन के जो पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। प्लस बहुत जिनका ड्राई है स्किन, तो लगाने से स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सिल्की लुक देता है आपके स्किन को। और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम एज अ बेस क्रीम मीन्स जो मेकअप के पहले, मेकअप यूज करने से पहले और फाउंडेशन यूज करने से पहले एक बेस क्रीम और प्राइमर यूज करते हैं सब। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन एज अ बेस क्रीम आप यूज कर सकते हो। मीन्स अगर ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लगाते हो एज अ बेस क्रीम, तो मेकअप के जो भी केमिकल्स रहते हैं वो आपके स्किन को इफेक्ट नहीं करता है। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करने से ये एक तरह से एंटी एजिंग से फाइट करने पे एक सहायता करता है। बहुत लोगों का स्किन सुबह उठने से एक डल हो जाता है, एक ग्लोजीनेस नहीं रहता है, मींस चमकता नहीं है। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने से जो फेस सुबह सुबह जो डल फेस होता है वो डल फेस आपका नहीं दिखेगा, फेस में ग्लो आएगा, ग्लोजीनेस नजर आता है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है एलोफास्ट। एलोफास्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से मैं बता दूं, ये एलोफास्ट आप किसी भी वुंड, जितने भी मेजर वुंड है वहां पे भी अप्लाई आप कर सकते हो। कहीं पे भी कट गया, छिल गया, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेडीज लोगों कोई भी तरह के स्ट्रेच मार्क्स, अगर लेडीज लोगों की स्ट्रेच मार्क्स है तो वहां पे भी बहुत अच्छा काम देता है। प्लस स्टिचेस के बाद जो दाग रहता है, स्टिच के दाग जो रहता है, वहां पे भी अगर एलोफास्ट अगर आप देते हैं तो स्टिच के दाग आपका रिमूव हो जाएगा। फिर स्टिच अगर आपका कहीं पे भी स्टिच रहता है तो डायरेक्टली अगर आप जो फर्स्ट एड की तरह आप एलोफास्ट को यूज कर सकते हैं। और एलोफास्ट डैंड्रफ में, हेयर फॉल में और किसी भी मेजर बर्न या सन बर्न में भी बहुत अच्छा काम देता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूं, एलो एमएसएम जेल। एलो एमएसएम जेल जिन लोगों का आर्थराइटिस प्रॉब्लम है या जॉइंट प्रॉब्लम है, बहुत पेन होता है, तो वहां पे आप एमएसएम जेल आप यूज कर सकते हैं। वहाँ का जो पेन है, वहाँ का पेन को रिलीफ देने में बहुत अच्छा काम देता है। फिर हम लोग का जो कार्टिजेस की मूवेबिलिटी है वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम देता है। जो लोग स्पोर्ट्समैन है या जिम्नास्टिक करते हैं और जिम में जाते हैं, उनके मसल में एक अगर एमएसएम जेल अगर यूज करते हैं तो उनका मसल्स में जो बहुत सारे लोगों का मीन्स खिंचाव पड़ता है वो नहीं होगा। और एमएसएम जेल एज अ क्या बोलूं, एज अ फेस में भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वहां पे भी ग्लेज देगा या फ्रेशनेस आपका एमएसएम जेल वहां पे लगता है यूज करने से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूं, एलो सनस्क्रीन। एलो सनस्क्रीन में SPF 30 मिला हुआ है, SPF 30 है। मार्केट में बहुत सारे आपके SPF 40, SPF 50 मिलेंगे,
बट मैं आपको एक बात बता दूं, SPF 30 नेचुरली अगर कोई भी सनस्क्रीन अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो SPF 30 से ज्यादा नहीं दे पाएगा। जहां आपके सनस्क्रीन SPF 30 से अबव गया तो वहां पे आपका केमिकल वहां पे रहेगा ही रहेगा, और केमिकल हम लोग की स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, हम लोग सबको पता है। ये सनस्क्रीन हम लोगों के यूवीए और यूवीबी सन जो रेज होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है और हम लोग के स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है। धूप से निकलने के एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप सनस्क्रीन लगाइए और बहुत देर तक आपका सन अल्ट्रावायलेट रेज से आपका प्रोटेक्ट करता है सनस्क्रीन। उसके बाद प्रोडक्ट आता है सोनिया डेली स्किन केयर प्रोडक्ट के आता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के दो और बहुत बड़े सेगमेंट है। सोनिया के सेगमेंट है और एक है इन्फिनिटी के सेगमेंट। अगर मैं सोनिया की बात करूं, सोनिया के जो क्लिंजर है, जेल मार्क्स है और भी दो प्रोडक्ट्स है, वो मेनली टीन एजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और जिनके कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन और टीन एजर्स लोगों के लिए ये सोनिया का प्रोडक्ट बनाया गया है। अब पहले अगर मैं सोनिया की सबसे पहले प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं, क्लिंजर की, ये जेल जेल फॉर्म में है, एकदम जेल फॉर्म में है और ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही कम यूज लगता है स्किन में, और ये बहुत डीप क्लींजिंग का काम करता है। एकदम स्किन के एकदम थर्ड लेयर में जाके आपका जो भी डर्ट है वो साफ करता है और बहुत ही अच्छा ये क्लींजर का काम करता है। उसके बाद आता है सोनिया का इल्यूमिनेटिंग जेल। इल्यूमिनेटिंग जेल नाइट में मेनली यूज करते हैं। इल्यूमिनेटिंग जेल के साथ एक मास्क आता है। एक कोई अगर जेल सिर्फ जेल लगाने से नहीं होगा, इल्यूमिनेटिंग जेल के साथ इल्यूमिनेटिंग मास्क भी लगाना बहुत जरूरी पड़ता है। और ये दोनों अगर कोई स्किन में अगर यूज करता है, इल्यूमिनेटिंग जेल ऑल्टरनेट डेज और इल्यूमिनेटिंग मास्क, तो आपके स्किन एक हेल्दी स्किन रहेगा और इलास्टिसिटी आपके स्किन बहुत दिनों तक रहता है। और जैसे मैंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपके स्किन नॉर्मल में चला जाएगा और पीएच बैलेंस आपका इक्वल रहेगा। उसके बाद मैं अगर इल्यूमिनेटिंग जेल के बाद अगर मैं मास्क की बात करूं, ये भी जेल के फॉर्म में है और ये आपको मास्क के तरह आपको लगाना है, अप्लाई करना है फेस में। मास्क के तरह आपको लगाना है और ये आपको सारे रात लगा के छोड़ देना है। मीन्स आपको सुबह धोना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि 15 मिनट्स की 20 मिनट्स लगा के आपको धोना है, बट ऐसा नहीं है, आपको पूरा रात लगा के आप धो सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि एक दिन इम्यूनिटिंग जेल और एक दिन जेल मास्क ऑल्टरनेट डे आपको लगाना है, एक साथ एक दिन दोनों मत लगाइएगा। उसके बाद प्रोडक्ट आता है मॉइस्चराइजर। ये भी जेल फॉर्म में है। सोनिया का चारों जो प्रोडक्ट्स है वो चारों प्रोडक्ट्स जेल फॉर्म में है और ये मॉइस्चराइजर लगाने से जो टीनएजर्स के जो स्किन है बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छा मेंटेन करता है। आज यहीं तक मैं आज आपको बता रही हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सोनिया और पर्सनल केयर, स्किन केयर और जो सोनिया के जो भी प्रोडक्ट्स है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है और एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है। इस वजह से हम लोग अगर जो भी रेगुलर प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों के स्किन के कोई भी प्रॉब्लम
नजर नहीं आता है और हम लोगों की स्किन हेल्दी रखता है। आज के लिए मैं सेशन आज यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। चलिए बाय बाय,